خبروں کی تفصیلات آگاہ کریں فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں 20 سال ماسٹر پلان کے مسودہ پر تمام اعتراضات دور کر دیے گئے۔ ایف ڈی اے آفس میں ماسٹر پلان کے حوالے سے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا۔ 5 سال سے زیر التوا شہر کا 20 سالہ ماسٹر پلان بالآخر 4 گھنٹے کے طویل اجلاس کے بعد تمام اعتراضات دور کر کے 10 ممبران نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ چیئرمین ایف ڈی اے ایم پی اے میاں وارث عزیز کہتے ہیں ماسٹر پلان کے مسودے کی منظوری میں تمام ممبران اور اراکین اسمبلی کی رائے کو محترم رکھا گیا۔ پہلے ہم نے 3 میٹنگیں جو پارلیمنٹیرین کی تھی، تمام پارلیمنٹیرین کے جو اعتراضات تھے وہ لیے، اس کے بعد ہم نے بی او جی میں رکھا، پھر بی او جی کے ممبران کے تمام اعتراضات ہیں وہ ہم نے لیے، اس کو بھی ہم نے انڈکٹ کیا اور اس میں جو بھی اعتراضات تھے تمام دور کر کے آج ہم نے اس کو اپروول کر دیے۔ ماسٹر پلان بنانے والی عثمانی اینڈ کمپنی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان کے مطابق شہر میں 5 نئے ٹرک سٹینڈ، مختلف مقامات پر 5 ہسپتال، ایف ڈبلیو ایم سی کے لیے سمندری روڈ پر ڈمپنگ ایریا بھی بنایا جائے گا، جبکہ اسپیشل ڈیولپمنٹ زون ایکسپریس وے کو اسپیشل ڈیولپمنٹ زون پلس ایس ایم ایز بنا دیا گیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوٹل اینڈ ٹورزم زون کو ہوٹل ٹورزم اینڈ ریزیڈینشل ایریا بنایا گیا ہے۔ ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام کہتے ہیں 5 سال سے زیر التوا ماسٹر پلان کی منظوری ہم نے 4 ماہ کے عرصہ میں ممکن بنائی، جلد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ یہ پروسیس اب ہو چکا ہے تو اس کو سارے ہاؤس نے یونینیمسلی اس کو اپروو کیا اور باہمی رضامندی سے، اور انہوں نے دیکھا، تھورولی دیکھا، کنسلٹنٹ نے ان کو ڈسکرائب کیا سارے پروسیس کو، اور اس سے تھرو ہو کے ہم نے آج اللہ کا شکر ہے فائنلی ماسٹر پلان اپروو کر دیا ہے۔ اب ہم فردر اس کی نوٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے، فردر پروسیس کی طرف جائیں گے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین میاں وارث عزیز نے کی، جبکہ ایم پی اے فردوس رائے، ڈی جی ایف ٹی اے ڈاکٹر زاہد اکرام، ایڈیشنل ڈی جی عابد حسین بھٹی اور ایف ٹی اے کے تمام ڈائریکٹرز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ حکومتی غفلت کے باعث گندم بحران مزید سنگین ہونے لگا۔ جھنگ میں فی من گندم کی قیمت 4500 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ چکی پر کلو آٹا 120 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب بھر میں حکومتی عدم توجہی کے باعث گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ منڈیوں میں فی من گندم کی قیمت 4500 روپے سے بھی اوپر چلی گئی، جبکہ چکیوں پر آٹا 120 روپے کلو ہو گیا۔ رواں سال حکومتی سبسڈائز آٹے کی قیمت میں 16% اضافہ ہوا، جبکہ تندور مالکان نے بھی روٹی کی قیمت میں منمانہ اضافہ کیا۔ اس حوالے سے آڑتی کہتے ہیں حکومتی ناقص پالیسیوں کے باعث ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ گندم کو متواتر اسٹاک اور اسمگل کیا جا رہا ہے، جس کے باعث بحران پر قابو پانا ناممکن ہو گیا ہے۔ جب آپ فلور ملز کو سبسڈائز گندم نہیں دیں گے تو کہاں سے توقع کی جا سکتی ہے وہ مارکیٹ میں آٹا سستا دیں اور آٹے کی کمی دور ہو؟ کہ اب 3000 والی گندم 4000 سے کراس کرتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب تک صوبہ بندی نہیں کی جائے گی یہ گورنمنٹ اس بحران کو قابو نہیں کر سکتی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت گندم کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ سستی روٹی کا حصول ممکن ہو سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ آٹے کی قلت یا پھر مصنوعی بحران، سرکاری آٹے کی خریداری کے لیے دکانوں پر شہریوں کی لمبی قطاریں سوال اٹھانے لگیں۔ مصنوعی بحران یا پھر واقعی آٹا عوامی ضرورت کے پیش نظر کم ہے، سوال اٹھنے لگے۔ دکانوں پر سرکاری آٹے کی خریداری کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں حکومتی نااہلی کی داستانیں بیان کرنے لگی۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ گھنٹوں لائنوں میں لگے رہتے ہیں، دہاڑی توڑ کر آٹا لینے آتے ہیں مگر آٹا نہیں ملتا۔ اپنی ایک دہاڑی 1500 کی توڑ کے 648 روپے کا آٹا لینے جاتے ہیں، جب ان کی باری آتی ہے تو دکاندار کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، ہمارے پاس آٹا ختم ہے۔ 400-500 کی دہاڑی لگانے والے ہم ایک تو دہاڑی توڑ کے آتے ہیں گھر سے، ادھر گھنٹوں لائنوں میں لگے رہتے ہیں، گاڑی جب آتی ہے 200-300 آدمی ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ شہری کہتے ہیں آٹے کی قلت کے بارے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو بھی آگاہ کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ آٹے کے 50 تھیلے ملتے ہیں، خریدار زیادہ ہوتے ہیں، آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے۔ 300 بندہ دکان پہ اوپر جمع ہوتا ہے، جب ان کی باری آتی ہے تو وہ آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ 50 بندوں کو مل گیا، اگر اس میں سے 250 کو نہیں ملا تو انہوں نے جا کے کیا کہنا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ آٹے کی قلت پر قابو پائے تاکہ شہری آسانی سے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ اوور ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی والا گھی اور دالیں کئی دن سے غائب، شہری اشیاء خورونوش کے اصول کے لیے خوار ہونے لگے۔
तोबा टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी और दालें कई दिन से गायब। शहरी अशय खुरनोश के असूल के लिए ख्वार हो गए। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 15 रोज से सब्सिडी वाला घी नहीं आ रहा। चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ओपन मार्केट पर तमाम अशिया बहुत महंगी है, खरीद नहीं सकते। सस्ती अशिया तमाम स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में होनी चाहिए ताकि ख्वारी ना हो। दूर से आते हैं, किराया वगैरह खर्च करके उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो मायूस होकर चले जाते हैं। बाकी हमारी यही तकलीफ है कि आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। मेहरबानी करके आप चीज़ें प्रोवाइड करें। जंग में यूटिलिटी स्टोर पर अशय खुरनोश के नए टेंडर ना हो सके। शहरी यूटिलिटी स्टोर से मायूस, सस्ती अशिया को तरसने लगे। खाली हाथ घरों को जाने पर मजबूर हो गए। नए टेंडर न होने से दर्जा अव्वल का घी, चीनी और दीगर सब्सिडी की अशिया स्टोर से गायब है। आटा भी मौजूद नहीं। शहरी अशय खुरनोश मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरी खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। जी सर, घी लेने आए हैं, घी नहीं मिल रहा। तकरीबन 17-18 दिन हो गए हैं, घी शी कोई नहीं है। आवाम जलील हो रही है, लाइनें लग रही है। हुकूमत ने चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जनाब दिया जावे तो आवाम जड़ी है सुकून नाल रोटी शोटी खा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से यूटिलिटी स्टोर पर अशय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने की दरख्वास्त की है। उधर चिन्योट में यूरिया खाद के बहरान पर काबू न पाया जा सका। काश्तकार ज़राअत के दफ्तर और डीलर शॉप के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। चिन्योट में यूरिया खाद के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। काश्तकार ज़राअत के दफ्तर और डीलर शॉप के चक्कर काटने पर मजबूर। काश्तकार कहते हैं डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। इस जुम्मन में ज़राअत ऑफिस कोई तावन नहीं कर रहा। इस वक्त ब्लैक में खाद तकरीबन 3000 रुपए बैग फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी कीमत 2250 रुपए है। काश्तकारों ने मुतालबा किया हमें यूरिया खाद दस्तयाब करवाने के लिए इकदाम किए जाएं। बुलाते हैं, कहते हैं आप आ जाएं। ऑफिस में कोई बंदा नहीं होता। हमारी मीटिंग चल रही है, ब्लैक में लें तो 650 में लें, इधर आए तो 2250 में हमें एक गट्टू नहीं मिल रहा। हालांकि आ भी रही है, सारे धंधे चल रहे हैं। ये एक किसान के साथ, एक फार्मर के साथ सरासर ज्यादती है। जंग के काश्तकार भी मसाइल से दो चार। गंदम की काश्त जारी, खाद की किल्लत का मसला हल नहीं हो पा रहा। 1-2 एकड़ की गिरदावरी के लिए महकमा माल के दफातर के धक्के कौन खाए। छोटे काश्तकार परेशान, खाद न मिलने से काश्तकार मुश्किलात से दो चार। काश्तकारों का कहना है 1-2 एकड़ की गिरदावरी कहाँ से लें, महकमा माल के दफातर के धक्के खाएं या फिर गंदम की काश्त करें। ओपन मार्केट में खाद महंगी है, जबकि सरकारी निर्ख पर मैसर ही नहीं। काश्तकारों का मजीद कहना है गंदम की काश्त के दौरान खाद मैसर न की गई तो पैदावार मुतासर होगी, जिससे गंदम का बहरान पैदा होगा। महकमा ज़राअत दे अफसर आए, वो आधा घंटा तकरीबन एक दुकानदार नाल बैठ के मीटिंग करते रहे। उस तो बाद वो चले गए, उन्होंने आख्या साढ़े कोल खाद कोई नहीं है। साड़ी दरखास्त है जंग इसी नूं कि मेहरबानी करें ते साढ़े हालात ते किवें मेहर करम फरमा के ते सानू किवें यूरिया खाद दिवावन। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का बस्ती इस्लाम में खाद के स्टोर पर छापा, 250 बैग सूना यूरिया बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टोर को सील करके बैग्स कब्जे में ले लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का कहना है बरामद शुदा खाद को सरकारी रेट पर फरोख्त कराया जाएगा। महंगाई के तूफान का अवामी सवारी मोटरसाइकिल पर भी वार। मोटरसाइकिल साज कंपनी यामाहा की जानिब से कीमतों में 12,000 से 13,500 तक इजाफा कर दिया गया। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और मुश्किल, मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा। यामाहा YBR 125 सीसी 12,000 रुपए महंगी होकर 3,05,000 रुपए की हो गई। YB 125 ZDX की कीमत 3,27,000 रुपए हो गई। YBR 125 सीसी 13,500 रुपए महंगी होकर 3,36,000 रुपए की हो गई। YBR G 125 सीसी 3,49,500 रुपए की हो गई। मैट डार्क ग्रे 3,52,500 रुपए की हो गई। शहरी अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ने से शदीद परेशान हैं। कहते हैं गरीब के लिए रोज बरोज सफर करना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल खरीदना नामुमकिन हो चुका है। 25 से 30,000 रुपया महंगा कर दिया है। उसके स्पेयर पार्ट भी जो है महंगा होता जा रहा है। लोगों की सकत से बाहर हो गया, वो काम नहीं करवा सकते, जिससे मैकेनिक भी परेशान है, फारिग बैठ के चले जाते हैं घर पे। शहरियों ने हुकूमत से मोटरसाइकिल की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई ने शहरियों से सवारी भी छीन ली। टोयोटा के बाद सुजुकी कंपनी ने भी दरामदी पाबंदियों के बायस मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी।
महंगाई ने शहरियों से सवारी भी छीन ली है। टोयोटा के बाद सुजुकी की कंपनी ने भी दरामदी पाबंदियों के बायस मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। 2 से 6 जनवरी तक प्लांट बंद रहेगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुजुकी कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज के बायस प्लांट बंद किया। सुजुकी ने स्टेट बैंक की कबलस दरामद, इजाजत और दिगर पाबंदियों को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की बड़ी वजह करार दिया। कंपनी सेक्रेटरी ने 1 हफ्ते के लिए यूनिट बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कंपनी ने तमाम ग्राहकों को बुकिंग समय सप्लाई मुतासिर होने से भी आगाह कर दिया। गाड़ी तो दूर, मामूली साइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। चंद हजार में बिकने वाली साइकिलों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कुछ अरसा कबल तक साइकिल हर घर का लाजमी हिस्सा थी। बच्चे साइकिल पर स्कूल, कॉलेजेस जबकि बड़े दफातर जाया करते थे। अब साइकिल की जगह मोटर बाइक ने ले ली। दुकानदार कहते हैं बड़ी साइकिल का गाहक तो शाज़ो नादिर ही आता है। बच्चों की साइकिल की मांग ज्यादा है, लेकिन जब खरीदार को कीमत बताते हैं तो गाहक चल देता है। शौकिया खरीदते हैं। एक मोहल्ले में, एक गली में, एक घर में अगर एक साइकिल जाता है ना, तो लोग वो मजबूर हो के बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं कि हमें साइकिल लेके दें। आजकल वो ट्रेंड सिर्फ रह गया है, वो लोग आके खरीदते हैं साइकिल। दुकानदार का कहना है कि शराब साइकिल 19,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बच्चों का साइकिल चाइना 1.5 साल कबल 4500 रुपए का था, अब उसकी कीमत 12,000 है। गाहक को रेट बताएं, कहते हैं 4-5 हजार रुपए में दे दें, हमारी अपनी बचत नहीं। आज से 2 साल पहले ना, 1.5 साल 2 साल पहले ये सेल करते थे 4500-5000 की। अब ये साइकिलें ये हमें 12,000 रुपये की परचेज़ हो रही है। तो हम गाहक से अगर 13,000 मांग लेना तो गाहक कहता है 13,000 रुपया, वो 7,000 हमें लगाते 5,000, क्योंकि हर ये 3 साल के बच्चे का साइज़ है। मौजूदा महंगाई की लहर ने साइकिल बेचने वालों के कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। कई बरस पहले जहां साइकिल एक ज़रूरत हुआ करती थी, अब ये सिर्फ एक बच्चों का शौक दिखाई दे रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तस्वीर नकवीस, सिटी 41, फैसलाबाद। आगाह करें, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुंच गई है। फैसलाबाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गैस भी नायाब हो गई। वहीद गार्डन और मुहल्लिका इलाकों में गैस की बंदिश से इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहते हैं ठिठुरते मौसम में गैस लोड शेडिंग ने अजाब में मुब्तला कर दिया है। खाना पकाना तक मुश्किल हो चुका है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अब तो चले छुट्टियां चल रही हैं, कोई 4 दिन छुट्टियों के हैं। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, ना कोई नाश्ते की टाइमिंग है ना कुछ और। ऊपर से महंगाई का दौर चल रहा है, हम लोग कहाँ से सिलेंडर वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज आप लोग गैस की कोई टाइमिंग कम से कम बना दें। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि होटलों से खाना खरीदने जाएं तो जेब इजाजत नहीं देती। गैस लोड शेडिंग के औकात मुकर्रर कर दिए जाएं तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को सियासी लड़ाई से फुर्सत मिल जाए तो गरीब आवाम का भी सोच लें। गैस लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अभी देखें जो एवरेज है ना, एवरेज सैलरी पर्सन जो 20 से 25,000 30,000 कमाने वाला है, वो 8-10 हज़ार की गैस कैसे अफोर्ड करेगा। तो हमारी अरबाब इख्तियार से ये बहुत पुरजोर अपील है, आपके तवज्जुह से, आपकी मेहरबानी, आप इधर आए हैं, इसके कोई टाइमिंग बनाई जाए और इसका मसला हल किया जाए। तो बाहर से अगर नाश्ता लेने जाते हैं तो कम से कम 150-200 रुपये का यानी कि नाश्ता पड़ता है एक बंदे का, तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी इसका कोई हल किया जाए। इलाका मकीनों ने अरबाब इक़्तिदार से मुतालबा कर दिया कि गैस लोड शेडिंग पर काबू पाकर हम वतनों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मौसम सर्द होते ही घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। सुई गैस की बंदिश ने शहरियों के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। शहरी परेशान जबकि घरेलू खवातीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। समाजी कारकुन डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि गैस ना होने से मामूलात जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो गए। महंगी LPG शहरियों की पहुंच से दूर, जबकि लकड़ी भी 800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। मर्दों ने और ख़वातीन ने अपने दफातर जाना होता है, वो जिस वक्त गैस आती है तो वो भी इतना लो प्रेशर होता है कि उसमें खाना नहीं बन पाता और वो रोटी आधी कच्ची रह जाती है, आधी पकती है, सालन नहीं पकता, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस अवाम बाजार से महंगा खाना लाने पर मजबूर हो गए। रोटी, सालन, नाश्ता, ये चीज़ें वो लोगों को मुहैया कर रहे हैं, जिससे लोग पहले ही महंगाई के मारे हुए हैं, वो मज़ीद तंग है इस सारी लोड शेडिंग के अंदर। और इस वक्त जंग के अंदर खुसूसन कोई 4 से 5 घंटे सिर्फ गैस दी जा रही है।
شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سوئی گیس کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ بجلی کی بچت کے لیے ڈویژنل کمشنر کمپلیکس فیصل آباد کو سولر پر منتقل کرنے کا کام کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر آفس پر سولر پینلز نصب کر دی گئی۔ سستی بجلی کے حصول کے لیے حکومت پنجاب کے 3 سال قبل کیے گئے اعلان کے مطابق مختلف دفاتر کے بعد اب کمشنر کمپلیکس کو سولر پر منتقل کیے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ کمشنر کمپلیکس میں موجود تمام پنکھے، لائٹیں اور دیگر الیکٹریکل اپلائنس اب شمسی توانائی پر چلیں گی، جبکہ اضافی بجلی فیسکو کے ترسیلی نظام میں بھجوائی جائے گی۔ یہ سستی اور کلینسٹ سورس آف انرجی ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ادارے خود کفیل ہو جائیں گے بجلی میں، بلکہ ہم کنٹریبیوٹ کر پائیں گے اپنے سسٹم کو بھی کہ وہ بجلی ان کو فراہم کریں اور وہ دوسرے لوگوں کے استعمال بھی آئیں۔ کمشنر شاہد نیاز کہتے ہیں ضلع کے تمام دارالاطفال، اولڈ ایج ہوم اور دیگر دفاتر کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ کمشنر کمپلیکس کو سولر پر منتقل کرنے سے نہ صرف بجلی کی بچت ہوگی بلکہ اضافی بجلی پیدا ہونے سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ ماڈرن چلڈرن ہوم تھے، اولڈ ایج ہومز تھے، دارالعلومان تھے، ان سب کو منتقل کیا گیا۔ اس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کمشنر آفس ہو رہا ہے اور پورے صوبے کے اندر اسی طرح فیصل آباد کے اندر باقی دفاتر بھی سولر انرجی پہ منتقل ہوں گے۔ ایڈمن آفیسر کمشنر کمپلیکس کا کہنا ہے شہر کے سب سے بڑے آفس کمشنر کمپلیکس کو سولر انرجی پر مکمل منتقل ہونے میں مزید 1 ہفتہ درکار ہے، جس کے بعد سولر سسٹم مکمل فعال ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین، ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال، کانٹریکٹ ملازمین ہوں گے بے روزگار۔ FBR-SNGPL سمیت دیگر وفاقی محکموں کے لیے ہنگامی ایجنڈا غیر ضروری کانٹریکٹ ملازمین کی چھانٹی اور سرکاری ملازمین کے بونس پر معافی اور پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ معاشی صورتحال، کانٹریکٹ ملازمین ہوں گے بے روزگار۔ FBR-SNGPL سمیت دیگر وفاقی محکموں کے لیے ہنگامی ایجنڈا غیر ضروری کانٹریکٹ ملازمین کی چھانٹی اور سرکاری ملازمین کے بونس اعزازیے پر پابندی اور ہیلتھ الاؤنس بند کر دیا گیا۔ کمزور معاشی صورتحال کے باعث FBR اور SNGPL سمیت دیگر وفاقی محکموں کے لیے ہنگامی ایجنڈا بنایا، جس کے مطابق غیر ضروری کانٹریکٹ ملازمین کی چھانٹی ہوگی، سرکاری ملازمین کے بونس اور اعزازیے پر بھی پابندی آئے، جبکہ گریڈ 11 سے 21 تک کے ملازمین کو ہیلتھ الاؤنس بند ہوگا۔ اسکیل 17 سے 21 تک کے کسی آفیسر کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی نہیں ملے گی۔ روز کی خلاف ورزی پر تنخواہ کی 50% کٹوتی ہوگی۔ ہر نوعیت کے سرکاری ادارے کو اخراجات کی تفصیل وفاقی کابینہ کو پیش کرنا ہوگی۔ سالانہ انکریمنٹ کارکردگی رپورٹ کے بغیر نہیں مل سکے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اقدامات سرکاری خزانے پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ فیسکو میں 130 اسامیوں پر بھرتیوں کا معاملہ، درخواست گزاروں کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 3 جنوری کر دی گئی۔ فیسکو میں اسکیل 17 پر بھرتی کے خواہش مند افراد 3 جنوری تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ فیسکو حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جونیئر انجینئرز کی 86 اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی 84 اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی۔ اوور ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے کو بڑے خسارے کا سامنا، ریل گاڑیوں کی آمد و رفت 3 ماہ تک معطل رہی۔ ریلوے کی آمدن 6 ماہ میں 70% کم ہو گئی۔ اوور ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے کی آمدنی میں کمی ہو گئی۔ سیلاب کے باعث ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہنے سے 3 ماہ میں صرف 3 کروڑ 74 لاکھ آمدن ہوئی۔ ریلوے حکام کے مطابق آمدن کا تخمینہ 7 کروڑ روپے سے زائد تھا۔ آگاہ کریں، فیصل آباد میں ریپ انویسٹیگیشن یونٹ جزوی جبکہ نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ مکمل غیر فعال ہو گیا۔ یونٹس غیر فعال ہونے سے جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں ریپ انویسٹیگیشن یونٹ جزوی اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ مکمل غیر فعال ہو گیا۔ فیصل آباد کے 13 سرکلز کا بوجھ صرف 7 خاتون سب انسپیکٹرز کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اقبال اور مدینہ ڈویژن کے 6 سرکلز میں صرف 2 خاتون سب انسپیکٹرز اور 2 اہلکار تعینات ہیں۔ دوسری جانب فیصل آباد پولیس لائنز میں 10 سے زائد خاتون سب انسپیکٹرز موجود ہیں۔ خواتین اہلکار موجود ہونے کے باوجود ریپ انویسٹیگیشن یونٹس بے یار و مددگار ہے۔ 5 سال قبل قائم ہونے والا نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ 350 سے زائد سب انسپیکٹرز موجود ہونے کے باوجود نارکوٹکس یونٹ مکمل بند ہو چکا ہے۔ یونٹس غیر فعال ہونے سے زیادتی اور منشیات فروشی کے واقعات کی روک تھام محض خواب بن کر رہ گئی ہے۔ کیمرامین کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایڈیشنل آئی جیز تمام ریجنل پولیس افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ تمام افسران کو نیو ایئر نائٹ پر غیر قانونی اقدامات پر سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے
अफसरान को फील्ड वर्क पर ज्यादा फोकस करने का हुक्म दिया। आईजी पंजाब ने शिरका मीटिंग को हदायत देते हुए कहा कि अफसरान मातहत फोर्स के साथ बराह रास्त मुलाकात करके मसाइल सुने। उधर चिन्योट पुलिस अफसरान और जवानों का पुलिस लाइंस में इजलास आम एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। डीपीओ इमरान मलिक ने पुलिस एहलकारों के मसाइल सुने और मौका पर अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने पुलिस अफसरान और जवानों से खिताब किया। डीपीओ ने खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का पैगाम तरजीहात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बतौर पुलिस ऑफिसर आप सबको अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये का मुजाहिरा करते हुए पुलिस कल्चर की तब्दीली में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हदायत की थाना सैटेलाइट टाउन में खुली कचहरी। साइलिन ने पुलिस से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ का इजहार बरहमी मामलात सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हदायत की थाना सैटेलाइट टाउन पहुंचने पर साइलिन से मुलाकात हुई, जिस पर पुलिस की काविशों पर रोशनी डाली गई। साइलिन ने थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस के मुतालिक शिकायत पेश की। महंगाई और ओवर चार्जिंग का मसला बरकरार। प्याज, टमाटर और सब्ज मसाला जात की कीमतें बेकाबू हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कंज्यूमर कमेटी की शिकायत पर डीसी काउंटर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। महंगाई और ओवर चार्जिंग के मसले पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा कि सुपर स्टोर्स पर डीसी का विंटर्स चेक करके तस्वीर भिजवाई जाएं, काउंटर्स चेक करके तस्वीर भिजवाए जाएं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नरखनामे आवेजा होने के इकदाम पर अमल करवाएं। फैसलाबाद चैम्बर में सदर डॉक्टर खुरम तारिक की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। महंगे रॉ मटीरियल, इजाफी डी मैरिज ड्यूटी, बिजली गैस की अदम दस्तियाबी और दीगर मुआशी मसाइल पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर डॉक्टर खुरम तारिक की ज़ेर सदारत ये इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में महंगे रॉ मटीरियल, इजाफी डेम्परेज ड्यूटी पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा बिजली गैस की अदम दस्तियाबी समेत दीगर मसाइल पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला भी किया गया। फैसलाबाद में कंप्यूटर की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ने बीएस कंप्यूटर साइंस के साथ पहली बार बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी मुतारिफ करवा दिया है। एनएफसी में बीएस कंप्यूटर साइंस भी ऑफर किया गया है। डायरेक्टर एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर नजफ अली अवान कहते हैं कि कोरोना के बाद हर शोबे में कंप्यूटर की अहमियत बढ़ गई है, इसलिए कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम वक्त की ज़रूरत है। मुस्तकिल की डिमांड को देखते हुए आईटी का नया प्रोग्राम शुरू किया है। तलबा 31 जनवरी तक बीएस कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं। फैसलाबाद में आईसीएमए और निजी बैंक का सेमिनार बिजनेस रिस्क और पाकिस्तान में इंश्योरेंस के हवाले से मुनाकिद हुआ। सेमिनार में कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत थी। आईसीएमए और निजी बैंक के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद बिजनेस रिस्क और पाकिस्तान में इंश्योरेंस के उन्वान से किया गया। सेमिनार का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। फैसलाबाद के जिना बाग में पीएचए की जानिब से विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। बागे जना में पीएचए की ज़ेर एहतमाम विंटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मेले के तीसरे रोज भी शहरियों ने बागे जना का रुख किया। खवातीन ने विंटर फेस्टिवल के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। फैसलाबाद के लोगों के लिए इस तरह के एंटरटेनमेंट के मौके जो है मैं समझती हूँ कि वो होते रहने चाहिए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बच्चे बड़े सभी जो है वो जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, वो तो आम भी हमें देखने में मिलते हैं, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन बूथ इन्होंने बनाया है। ये बहुत अच्छी इनकी काविश है कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। खवातीन कहती हैं कि फैसलाबाद में मेलों का इनेकाद बहुत कम किया जाता है। फैमिलीज की तफरीह के लिए विंटर फेस्टिवल जैसे मेलों का इनेकाद होना चाहिए। जो खवातीन आ रही हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, वो मुख्तलिफ स्टॉल पे आ रही हैं, हम भी साथ उनको अपने सेंटर के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो है ना उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। और हमारे फैसलाबाद सिटी में हमारे जितने भी मराकज़ हैं हम उन्हें बता रहे हैं साथ के फलां जगह पे हमारा मराकज़ है, वहाँ जाके ये फ्री है सहूलियात। जो भी फैमिली प्लानिंग के मेथड यूज़ करना चाहते हैं वे टोटल फ्री हैं। मेले में खानों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन जुबैर के साथ खिदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।
दूसरी जानिब फैसलाबाद में एटी आर्ट गैलरी में तलबा की जानिब से ग्रुप आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह रीजनल बिजनेस हेड बैंक ऑफ पंजाब काशिफ सुहेल शेख ने किया। आर्ट गैलरी में तलबा की जानिब से फन पारे पेश किए गए। 2 तलबा और 2 तलबात ने नुमाइश में पेंटिंग पेश की, जिसमें ट्रक आर्ट, गेट स्टोन और ओल्ड बिल्डिंग के हवाले से फन पारे बनाए गए। इस मौके पर मेहमान खसूसी रीजनल बिजनेस हेड बैंक ऑफ पंजाब काशिफ सुहेल शेख का कहना था कि ऐसे इवेंट का इनेकाद खुश आइंद है, इससे तलबा को प्लेटफॉर्म मुहैया होता है। एंड फ्रॉम द साइड ऑफ बैंक ऑफ पंजाब वी आर ऑल्सो हम लोग पैटर्न कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। गेट स्टोन पे काम है, मैंने उसके टेक्सचर को डीपली एक्सप्लोर किया और उसके बाद मैंने टेक्सचर मटेरियल में उसको सारा किया है काम। कल्चर्स को शो करवाया, जिस तरह हम पेपर पे फैब्रिक वीव होता है उसको पेपर्स के साथ वीव करके हमने पेंटिंग्स यूज़ की। गांव शमशेरगढ़ की जो बिल्डिंग्स है, ओल्ड बिल्डिंग जो हिंदुस्तान के दौर से जो बंद पड़ी हैं, जिनमें से गुरुद्वारा है और मैगनीजा स्टेशन है, मैंने उन बिल्डिंग्स को जो कि ख़त्म हो रही हैं आस्ता आस्ता उनको अपनी पेंटिंग्स में लेकर आया हूँ। शायकीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की और तलबा के काम को सराहा। इस मौके पर शायकीन का कहना था कि तलबा ने बहुत खूबसूरत आर्ट पेश किया है, जबकि सरबरा एटी आर्ट गैलरी मोहम्मद फहीम तुफैल कहते हैं कि ऐसी नुमाइश से तलबा की हौसला अफजाई होती है और नया टैलेंट उभर कर सामने आता है। और हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन नया टैलेंट और खूबसूरत किस्म का काम सामने नजर आ रहा है। तो आज की जो खास इवेंट है ये वॉल्यूम 2 था जी, और इसके अंदर थ्रेड्स के साथ, डिजिटल प्रिंटिंग के साथ, गोल्ड लीफ के साथ, वीविंग के साथ तलबा ने, इमर्जिंग आर्टिस्ट ने, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हैं जिन्होंने जाके अपना काम प्रेजेंट किया है। यंग जनरेशन को, हमारे जो नई जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, इनके आर्ट वर्क को प्रमोट करने के लिए तो हम भी इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करते रहेंगे और इस तरह के इवेंट्स होते रहें, बहुत अच्छी चीज़ है। एटी आर्ट गैलरिया में आर्ट स्टूडेंट्स की जानिब से फन पारे पेश किए गए, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। डचकोट रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर क्लब बॉल हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में सैयद अरसलान अली शाह, मुश्ताक अहमद कम्बो, नेशनल क्रिकेटर शहरियार कदूस और दिगर ने शिरकत की। पहले मैच में ZIH ने शाहीन क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। नाया जट ने 3 गोल किए। इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी सैयद अरसलान अली शाह, मुश्ताक अहमद कम्बो, नेशनल ट्रेनर शहरियार कद्दूस, इतरत नजीर, अरशद गिल, वुमेन खिलाड़ी मरियम अली शाह, वुमेन सेक्रेटरी मिस राबिया ने शिरकत की, जिनका कहना था कि इस नए खेल को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इस खेल में लड़कियां लड़के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, एक्सपीरियंस हासिल किया और अब हम जो है ना इसको यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि ये नई जनरेशन जो है इससे कुछ फ़ायदा उठाए। They have a lot of fun doing it. It's very much needed. The sport already exists. A lot of people are playing it. हॉकी बॉल को खेलने वाली लड़कियों का कहना था कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि लड़कियां भी हर मैदान में अपने जोहर दिखा सकें। हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि गर्ल्स आगे से आगे मूव कर सकें और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।